ফিরি সেই পাকা বিদ্যের প্রথা 120 বছর আগে যে ডাক দিয়েছিলেন হযরত মাওলানা কাসিম নানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরত নূর মোহাম্মদ জিনজাবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরত মাওলানা মুহাজির মক্কি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, অন্যান্য উলামায়ে কেরামরা তাদেরই সন্তান আমরা বলছি কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম সমাজের কাছে ডাক দেব। ও আমার ভাইরা, আমার মা বোনেরা, তোমরা ছেলে দাও, তোমাদের ছেলের মাথায় টুপি দিব, তোমাদের ছেলের মাথায় পাগড়ি দিব, তোমাদের ছেলের মুখমণ্ডল দাড়ি দিব, আর অন্তরটা কোরআন হাদিসের বাণী দিয়ে ভরপুর করে দেব। তার প্রমাণ এই ফুরকানিয়া মাদ্রাসা, জামিউল মাদ্রাসা, আনোয়ারুল মাদ্রাসা, লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। ইংরেজ যখন হাজার নয় লক্ষ লক্ষ কোরআনে পাককে আগুনে জ্বালাতে আরম্ভ করলো, সমুদ্রে ফেলতে আরম্ভ করলো, বীর মুজাহিদের মতো একজন আলেমের দিন বলল, হে ইংরেজ, কোরআনকে জ্বালাতে পারিস, পুড়াতে পারিস, আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করতে পারবি না। তাই এই শিশু 14 বছরের বাচ্চা আলহামদুলিল্লাহ থেকে শুরু করলো, শেষ করলো। তাই একজন হাফিজে কোরআন সেই কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। আর আল্লাহ তাই বলেছেন, নাহনু নাযালনাল কোরআনা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন, আমি এই কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি, আমি কোরআনের হেফাজত করব। সেই দারুল দেওবন্দের একটা ঘটনা, মুলতান শহর থেকে, তখন ছিল ইন্ডিয়া ভারত, একটা ছেলে ইন্ডিয়া এসেছিল। ভর্তি হতে দারুল দেওবন্দে তখন রুম বেশি নেই, বাড়ি বেশি নেই, থাকার জায়গা নেই। तो हेड मौलाना बोललेन, भाई दाखिला तो हो जाएगा, क़यामत ताम का इंतजाम नहीं होगा, खावा থাকার ব্যবস্থা হবে না। সেই ছেলে ভর্তি হয়ে যায়, মানে ক্লাসে আসবে, পড়বে, চলে যাবে। পাশের মসজিদে গেল, মুয়াজ্জিনকে বলছে, ও मुअज्जिन भैया, ऐसी ऐसी हालत है, मैं मुल्तान से आया हूँ, दाखिला तो हो गया, रहने का जगह नहीं, मैं झाड़ू दे दूंगा, कुछ काम कर दूंगा मस्जिद का, मुझे रहने देना। तो खादे में मस्जिद ने कहा, ठीक है रहोगे, खाना नहीं है। गेट से बाहर वो लड़का रास्ता सामने ही है, बैठा हुआ है, मकबूम, फिक्रमंद, रोता हुआ चेहरा, आंसू बहाता हुआ आंख लेकर मुसाफिर जा रहा है। আসছে যাচ্ছে সকলে, কেউ দেখছে না, কেউ দেখছে তো কিছু জিজ্ঞাসা করছে না। একজন মা, জননীর অন্তর এত দয়ালু অন্তর কারণ নেই। সেই মা জননী বুড়ি একজন রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল, বলছে, বেটা क्या हुआ, तुम क्यों बैठे हुए हो? তখন সে বলছে, जाओ जाओ माँ, तुम अपना काम करो। फिर जिज्ञासा करते, अरे बताओ ना क्या होता है, तुम क्यों ऐसा बैठे हुए हो? बार बार जिज्ञासा करार परे बोलते, जब मैं मुल्तान से आया था, दाखिला तो हो गया, रहने का भी इंतजाम थोड़ा मस्जिद में हो गया, खाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ, मेरे नसीब में इल्म नहीं है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। बाखुदा हैरत माना दोस्त मोहम्मद कुरैशी मुल्तानी ये वाक़या नकल किया है। वो बुढ़िया रोती हुई
कहते बेटा फिक्र मत करो, बेटा फिक्र मत करो, खाने का मैं इंतजाम करूंगी, खाने का मैं इंतजाम करूंगी। तो लड़का थोड़ा खुश हुआ और पूछा अम्मी कैसे इंतजाम करोगी? बोले सुनो बेटा, बाजू में एक मालदार घराना है, वहां मैं काम करता हूं, जो रोटी मिलती है मुझे मैं एक खाऊंगी, तुम्हें एक दूंगी। আমি একটা রুটি খাবো, তোমাকে একটা রুটি দিব। ছেলে মেহমানে রসুল, নায়েবে রসুল বলছে না না, बोले तुम यकीन करो मैं तुम्हारा इंतजाम करूंगा। ওই মেহমানে রসুল বলছে খোদা কসমকে বলছি প্রত্যেক দিন ক্লাস ছুটি হওয়ার পরে যখন গেটের বাইরে বেরাতাম, আমি এমন একদিনও পাইনি এক বছরের মধ্যে যে ওই বুড়িমা গেটের সামনে রুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। প্রত্যেক দিন আমাকে রুটি দিয়েছে, খেয়েছি। দ্বিতীয় বছর এলো, আমার দারুমে ভর্তি হয়ে গেল, খাওয়া থাকা সবকিছু। আমি আলেম হয়ে গেলাম, বুখারী পড়ে নিলাম। আমি মুলতান আমার দেশে ফিরে গেলাম, সেখানে দিনের খিদমত করতে লাগলাম। খিদমত করতে করতে আল্লাহ তো এমন তৌফিক দিল, আমি হারামাইন শরীফাইন মক্কাতুল মুকাররমা মদিনাতুল মুনাওয়ারায় হজ করতে গেলাম। আল্লাহ নিয়ে গেলেন। একদিন সে মক্কাতুল মুকাররমায় হারামাইন শরীফাইনের ভিতরে আমি ঘুমিয়ে আছি, স্বপ্ন দেখছি সামনে যেন একটা তখ্ত বিছানা আছে, সেই তখ্তটা যেন মতি জেওরাত হীরা দিয়ে চকচক ঝকঝক করছে, অতি উজ্জ্বল। ऐसा चमक रहा था जैसे उसकी चमक चांद और सूरज से भी ज्यादा है। वल्लाहि मैं रह नहीं सका, बैठ गया, सामने सामने बढ़ता गया। जाके देखता हूँ वही बुढ़ी माँ बेवा बैठी है हुई है उस तख्त पर। मैंने कहा अम्मी जान इतना आला मकाम में आप कैसे पहुंचे? बोले बेटा क्या बताऊं, अल्लाह ने उस एक रोटी के बदले में इस मकाम में मुझे पहुंचाया है। एक रोटी के बदले में अल्लाह ने मुझे इस मकाम में पहुंचाया है। एक मेहमान रसूल को रोटी दिया, बाखुदा मैं कह रहा हूं, ये वाकया आ गया। कोई देखना चाहे किताबी शक्ल में देखा सकते, बनावट नहीं है। फिर उस बेवा ने रोती हुई कही कि फरिश्तों ने बेटा सुनो, फरिश्तों ने कहा या अल्लाह इनका हिसाब और किताब क्या होगा? तो अल्लाह ने फरमाया कि उनका कोई हिसाब और किताब नहीं। उन्होंने मेहमान रसूल की, नायब रसूल की, खादिम रसूल की उन्होंने खिदमत की। उनका आला मकाम पर पहुंचा दो, मुझे आला मकाम मिल गया, पहुंच गया उस रोटी के बदले में। इससे बढ़कर कोई अल्लाह की नेमत नहीं है। तो इसलिए भाई एक दफा बताऊंगा, मुस्कान ने ऐसा एक आवाज उठाई जिस आवाज में पूरी दुनिया को चमका दिया, जगा दिया। ना तकबीर अल्लाहु अकबर। हम जानते नहीं मुस्कान जो निकाब के खिलाफ आज चल रहा है, हर जगह वाकया। हिजाब और निकाब के बगैर स्कूल कॉलेज में आना पड़ेगा। और श्रीराम वाले, बजरंग वाले, इन लोगों ने बहुत शरारत की, पीछे हटाया। मोबाइल वाले जानते हैं। तो उस मुस्कान बेटी ने आवाज उठाई अल्लाह अकबर। तो एक दफा अल्लाह की नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। और जब से नारे तकबीर, नारे तकबीर।
नबी, मैं शुरू में जब माइक पकड़ा था बताया था, कोई अगर मोहब्बत की निगाह से मेहमान रसूल को देखेगा जन्नत में जाएगा, उसका वाक़या बता दिया। जो इन पर सर में हमदर्दी के साथ हाथ रखेगा जन्नत में जाएगा, जहन्नम से बचने का जरिया होगा, कब्र के आज़ाब से बचने की जरिया होगा। हौज कौसर नबी के हाथ से पानी पीने का तौफीक होगा। अल्लाह ने नियामत अता की, तो हमेशा दुआ करे भाई और बहने, जो कोई हो जब तक हयात रहे कि वही तालिब इल्म को गलत निगाह से, गलत ख्याल से ना देखे। वम्मसाइला फला तनहर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, ये तालिब इल्म में रसूल अगर दिखला दीनी हासिल करने के लिए इत्तेफाक से मौत हो गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया सीधा जन्नत में जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। तो आज एक फुलकानिया के लिए मैं दुआ करता हूँ, बोलता हूँ, कहता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, रोता हूँ। हाजी साहब, हाफिज साहब, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, दीगर बड़े बड़े उलमा ने जब नाम रखा था फुलकानिया, जाल हक वाज हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। ये फुलकानिया मिट्टियों का लगा मकान और घर नहीं है, ये जन्नत में जाने का जरिया है, जन्नत हक और बातिल के दरमियान फर्क करने का जरिया है। ये फुलकानिया लाखों इंसानों की जान को बचाने का जरिया है, लाखों हजारों इंसानों को नजात देने का जरिया है। एक फुलकानिया वो फुलकानिया है जो नाबे रसूल तैयार करने वाला का मकान है। ये वो फुलकानिया है इलाके में अल्लाह की रहमत नाजिल होने का सबब है, गजब को रोकने का जरिया है। तो सुन लीजिए, कोई भी दीनी इदारा हो, मदद करने एक मुट्ठी चावल देना। एक लड़का जिसका नाम मैंने बताया क्या, मुशर्रफ हुसैन, 4-5 साल पड़ा, उनका रिश्तेदार आया हुआ है, एक पैसा फुलकानिया ने कभी नहीं लिया। कितना कुंटल चावल खाया, कितना पैसा खाया, कितना क्या किसके पैसे से? आप लोग के आवाम के पैसे से। और लिहाजा एक पैसा जाएगा नहीं, बेकार नहीं, एक क़यामत तक जब तक जाएगा इसके सिलसिला चलता रहेगा। नहीं पढ़ाया वो पढ़ाएगा, वो पढ़ाया वो पढ़ाएगा, इलाही और क़यामत सौदे जारिया मिलता रहेगा। इसलिए मैं वक्त ना लेते हुए कहूँगा, इतनी कुर्बानी मौत आनी है। होशियारी के लिए मैं आवाज दूंगा। ये हाजी साहब का रूह तड़प रहा है, हाजी अमजद साहब का रूह तड़प रहा है, बंदा जो चिल्ला रहा है, मौलाना अब्दुल कादिर साहब चाचा की मेहनत से अल्लाह ने मुझे यहाँ लाया था, उनका भी रूह तड़प रहा है। अकाबीर ने कुर्बानी दिया, इसको जिंदा करना, इसको तरक्की करना हम लोग की जिम्मेदारी है, हम लोग की ईमानदारी तकवादारी है। तो लिहाजा ऐसे 20 नहीं, साल में 50 लड़के के सर में पगड़ी बांधी जाए, इंशाअल्लाह अगर आप लोग के हमदर्दी साथ में रहे। आज हिंदुस्तान में कई श्रीराम, आज मालूम है आपको, जो ईसाई इंग्लैंड की इस हिंदुस्तान को ईसाई हुकूमत बनाने के लिए आया था, अल्लाह ने नाकाम कर दिया। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग, ये मजदूर शैतान कौम और जमात ने ऐलान कर दिया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। खुदा की कसम मैं बात बोलता हूँ, कुरान ने जब गारंटी दिया नानो नाजन जिक्रा वही जिंदगी में क्या तक वो मजदूर लोग हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकता। मुसलमान के दिल में, मौलवियों के दिल में, हाफिजों के दिल में कुरान की आयत रहेगा। जैसे हुसैन मदानी ने ऐसे सर में पगड़ी बांधा था, इंग्रेज को कहता है, इंग्रेज के साले को सुन लो, हुसैन अहमद गिरवाल फाड़ देता है, सर पे कफन है, तुम कहते रहो, गोली चलाते रहो, तुमसे गद्दारी करूंगा, करता हूँ, तुम्हारे सामने हुसैन अहमद सर नहीं झुकाऊंगा।
का जो कहेंगे। तो लिहाजा जब तक ऐसे फुरकानिया कैसे दोस्त नहीं रहेगा, बीजेपी बजरंग और दीगर बातें फिरकों के सामने ये आलिम कभी सर झुकाने वाला नहीं है। लिहाजा हम मैं बताऊंगा, अपने बाप दादा नाना नानी रिश्तेदार कब्र में जा चुके हैं, हम लोग जिंदा है। साहबे किराम खून बहाया, चक चक चमकने वाले बालों को खून से रंगा दिया, गर्दनों को कटा दिए, तब तो वह हाथ को छीट कर दूसरे हाथ में नेजा को ले लिया, कुरान को हमारे तक पहुंचाया, इस्लाम को हमारे तक पहुंचाया, ईमान को पहुंचाया, चेहरे में दाढ़ी दिलवा कि हम पर अखलाक की फरीजा नहीं है, हमारी ईमानी फरीजा नहीं है। खून चाहे तो खून देना पड़ेगा, जान चाहे तो जान देना पड़ेगा, माल चाहे तो माल देना पड़ेगा, इंशाअल्लाह 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 बोलिए। तो इसलिए मैं बताऊंगा मौलाना सलीम साहब को लाइए और मैं बताऊंगा सिर्फ 5 आदमी 5000 करके जन्नत में जाने के लिए और खुद करने के ताउन के लिए 5000 करके सिर्फ 5 आदमी बोलिए देने के लिए ना 5 आदमी चाहता हूं मैं, 5 आदमी 5000 करके फकत। कोई है? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो सिला बयान है सही होता की कसम सुबह तक कर सकता हूं, बयान सुना नहीं। मरना और जीना, जीना मरना, इनसे इंसानियत नहीं कहा जाता है। मरना जीना, बंदा सुअर कुत्ते जीता है मरता है, जीता है मरता है, इंसान वो है हर चीज को सोचता है, समझता है, रिज़ाए खुदा के लिए जान देता है। ऐ मोमिनो मत घबराओ, अभी इस्लाम बाकी है, कुरान बाकी है। अगर हम नहीं कहेंगे तो सिर्फ करके 5 आदमी चाहिए, बोलिए 5 आदमी, 5000 करके 5 आदमी कोई नहीं है। भागना पड़ेगा, वो आके बताओ, कहते हो चलो गाड़ी में चलो, उस पर छोड़ देंगे, फोटो दिखाऊंगा, तुम क्या हो? मुसलमानों को कुछ नहीं करूंगा, तुम मुसलमान हो? हाँ मैं मुसलमान हूं, उस पर छोड़ दूंगा। गाड़ी से उतारता है, तुम्हारा कलमा क्या है? बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा भी है बेटी भी है, बेटा भी है बेटी भी है, सामने खड़ा करके इंग्रेज की जान ठक 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 करके गोली चला गिर जाता है, फिर बेटी को पकड़ता है, भाई के सामने ठक ठक करके गोली चलाता है, खत्म कर देता है, फिर बहन को भी खत्म कर देता है। वो ऐसा जमाना आ रहा है, देखते रहेंगे तकते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। होशियार हो जाइए। 5000 के नहीं, 20 आदमी भगत 2000 करके एकदम 20 लड़के ने, तालबेल ने, मेहमान रसूल ने आप लोगों के सामने दस्ताबंदी ली, इस्लाम के पास करने वाले 20 आदमी 2000 करके चलते आइए। 20 आदमी अल्लाह इम्तिहान लेना चाहते हैं, अल्लाह इम्तिहान लेना चाहते हैं। 2000 सुबह ही खत्म हो जाएगा, अल्लाह मुसीबत में डाल दे। 20 आदमी, 20 मेहमान रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर, अब क्या कबीर इस्लाम 2000 रुपया, नाराए तकबीर। 2000 का जल्दी आइए, 2000 लाख रुपया दे सकता है, 2000 करोड़ रुपया दे सकता है, ये बेकार नहीं जाएगा। 2000 करके 20 आदमी 20, ये 1000 11,000 आदमी है, पैसा नहीं है, नकद नहीं है तो 800 दीजिए, 1200 दीजिए, पहुंचा दीजिए बाद में। सेलिम मलिक 2000 करोड़, 2003 हुआ, बताइए जल्दी जल्दी। 2000 करके 20 आदमी
मुश्ताक भाई 2000 भाई दे दे लिखे 2000 में वादा करे रात में 20 आदमी जल्दी जल्दी बोलिए। मदरसा के मेंबर मैं जोर से बोलता हूँ, कुरान हदीस के रूप से बोलता हूँ कि ये जो पांचपेड़िया इलाका है ये रहमत नाजिल होने का, गजब से बचने का जरिया ये फुलकानिया है, फुलकानिया है, फुलकानिया है। लिहाजा 2000 ज्यादा नहीं, ये 2000 कुछ भी नहीं। डॉक्टर देगा, बीमारी में फंसेंगे डॉक्टर लेगा 2000 नहीं 2 लाख ले लेगा। जिस नियत पे दीजिएगा अल्लाह कबूल करेंगे, उसी नियत को पूरा करेगा। मैं किसी से बोलता नहीं, शेख साहब 2000 नहीं। और कोई है भाई जल्दी आइए, वक्त नहीं लूंगा। 2000 करके 4 आदमी हुआ, 2000 करके आलिम उलमा मुदारिस कमेटी का आदमी, 2000 करके जल्दी माँ बहने माँ बुनेरा जा सुनचे, दादा दादा नामे, चाचा चाची नामे, मामा पान नामे असगर अली 2000 रुपए ना तकबीर। या अल्लाह कबूल फरमा, मेहनत का कबूल फरमा। 2000 करके दीजिए, 2000 करके 2000। मैं कहता हूँ सुन लीजिए, अल्लाह ने 2 दफा मक्कातुल मुकर्रमा ले गए, इरादा है कि हर साल अल्लाह ले जाए। हर एक नियत कीजिए। मैं कहता हूँ कोई भी नियत हो, नियत से 2000 दीजिए। आइंदा साल तक अगर ना नियत पूरी हो मुझसे ले जाइएगा, इंशाल्लाह मैं पूरा करूंगा, वापस दूंगा 2000 रुपया। इतनी बात कहता हूँ। 2000 रुपया चाहिए। हाजी फैजुल रहमान साहब 2000, अल्लाह कबूल फरमाए। आइए भाई, तकरीर करूंगा तो रात में तकरीर छोड़ दिया, तकरीर करता नहीं। मुसलमान को जागना चाहिए। अब भी अगर ना जाओगे तो रास्ता नहीं पाओगे, कहां भागोगे? अब भी अगर ना जाओगे रास्ता नहीं पाओगे, कहां भागोगे? तो भागने से पहले जग जाइए, जग के कुरान को पकड़ लीजिए। नमाज कुरान के बगैर नहीं, जनाजा बगैर कुरान के नहीं, निकाह बगैर कुरान के नहीं। कोई भी कुरान के बगैर जी नहीं सकता, न कुरान के बगैर मर सकता है। लिहाजा कुरान से बेरुखी मत हो जाइए। कुरान की शान बहुत आला है, कुरान की बहुत आला मकाम है। 2000 करके बस 2000 नहीं, 1000 का 20 आदमी जल्दी आइए। 1000 का 20 आदमी जल्दी उठे। नौजवान ताजी कमाने वाला मैकेनिकल जितने 1000 करके 20 आदमी 1000 करके आइए, जल्दी जल्दी फटाफट 1000 करके। माओ बहने फारूक अब्दुल्ला 1000, फारूक अब्दुल्ला 1000, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह माल और दौलत में बरकत अता फरमाए, मुसीबत में हिफाजत फरमावे। आमीन। अल्लाह ताला तादेরকে हिफाजत दान करें। একজন ছেলে যা পাগল হয়েছে সেলিম, তার চাচা রামজনপুরে বাড়ি, না থাকতে পেরে দিল 24 টাকা, তারা 2400 টাকা তাড়াতাড়ি আল্লাহ তাআলা কবুল করলেন। আমিন সুবহান আমিন। নারে তাকবীর। বলেন ভাই, তাড়াতাড়ি বলুন, টাইম নিব না। 1000 করে 20 জন, 1000 করে 20 জন, বেশি নয়। বিমার থাকেন সেই নিয়তে দেন। কোচি ছেলে এসেছিল 2000, আল্লাহ আল্লাহ কবুল করেন। এখন 1000 বলছি, 2000 আসছে। নারায়ে তাকবীর। বলুন ভাই, ওই ছন্দ বানিয়ে উঠতে হয় নেই। রাতের অন্ধকারে, গভীর অন্ধকারে জান্নাতের আশায়, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য কোরআন হাদিসকে প্রচার প্রসার করার জন্য ঘুম ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন আপনারা, আমরা সকলে। আল্লাহ তাআলা আমাদের নিয়তকে পুরা করবেন। সেই কোরআনকে বাঁচানোর জন্য আসুন 1000 টাকা করে, 1000 টাকা করে। আর কে আছেন দেন?
1000 টাকা করে কত হচ্ছে 1000 টাকা করে দেন নগদ, ধান নয়। যে পৌঁছে দিবেন সে ধান লিখান, যে পৌঁছে দিবেন সে ধান লিখান। এই কিতাবগুলো 74,000 টাকার কিতাব। वो राजा 500 दिया है, राजा भाई 500 रुपया अल्लाह का कबूल का आमीन। 500 बाद में देंगे। ये जो मानसे का हमदर्द है, नौजवान है, 5 जगह नमाज की पाबंद अभी नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह हो जाएंगे। लेकिन इदारा को चाहता है, इदारा के लिए मेहनत करता है, इदारा के लिए फिक्र करता है। नबी के दीन के लिए जो फिक्र करेगा अल्लाह ताला उनके लिए फिक्र करेंगे। हदीस कुदसी है। आइए भाई 1000 करके 1000 करके जल्दी बोलिए 1000 करके है नहीं। एक अल्लाह के बंदे 1000 रुपया मां फातिमा की तरह रह नहीं सकती। आज पहुंचते ही 1000 रुपया देकर भेज दी। आइए भाई 1000 करके जो चाहे दे दे। 1000 के जल्दी जल्दी चलिए। अब 1000 भी तुमका नहीं दूंगा, 500 करके फटाफट उठिए, फटाफट सबके जारिया। माँ बाप ने, ससुर और सास ने, दादा और दादी ने बहुत मेहनत की, कमर में सोए हुए हैं, किस हालत में कोई बता नहीं सकता, कोई मालूम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उनके अज़ाब अगर हो माफ फरमाएंगे। शाहरुख भाई 3000 टाका अल्लाह का कबूल करे, अल्लाह का कबूल फरमाए। मैंने कहा दिया कोई भी नियत से दीजिए 2000 1000। मैं अगर जिंदा रमजान जलसे में आके बताइएगा कि नियत पूरी नहीं हुई, मैं लियाकत कर रहा हूँ, मैं उनका 1000 रुपया वापस करूंगा इंशाल्लाह। ए भाई এই গ্রামে বাড়ি ফকিরপাড়া বাড়ি মাসা হামদর্দ মাসা কাজী আছেন, সবই করেন, চিন্তা ভাবনা করেন, দিয়ে গেলেন। আফজা ভাই 500 টাকা লাভ করুন। নারায়ণ তাকবীর। নজম বাবি জান দিয়ে যান। আমি আজকের হিসাব চাই যদি দিই আপনাদেরকে শেখ ফাজিলাই পাশে এক কোচি বাবা সামনে শুনে कोची बाबा 500 টাকা দিয়ে গেল। আল্লাহ তা কবুল করে ও মা বাপকে সুখে রেখে 1000 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। साबिर भाई जाए, ये जो साबिर भाई 2000 रुपया अल्लाह के राह में। साबिर भाई बहुत हमारे दोस्त है, हमदर्द है, 2000 देंगे। अल्लाह ने अल्लाह कबूल फरमाए। उनकी आलिया मोहतरमा अल्लाह के प्यारी हो चुकी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। भाई आइए असगर भाई अफजल है 500 रुपया अल्लाह का कबूल भाई। ओ नौजवान भाई कमर में हाथ में फूंसी निकलने वाला अल्लाह है, अगर फूंसी निकलवा दे तो हम कहाँ भागेंगे, कोई रास्ता नहीं। शेख शमसुद्दीन 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। वो भाई जल्दी कीजिए, जल्दी तब बात करूंगा, जल्दी 500 रुपया 500 ज्यादा वक्त अब हर एक 100 रुपया करके जितने आदमी हैं मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ, 100 रुपया धड़ा करके आइए दे जाइए। आज पंडल खर्चा, किताब खर्चा, पगड़ी खर्चा 3 लाख से ज्यादा है, लिहाजा इतनी रकम कौम ने खर्चे 100 करके कम से कम दे जाइए। 100 करके फटाफट मौलाना सलीम चतुर्वेदी को ले आइए। नारायण तकबीर, नारायण तकबीर, अल्लाहू अकबर। 100 रुपया अल्लाह के रास्ते में रात के अंधेरी में अल्लाह के सामने फरिश्ते गवा देंगे। ज्यादा नहीं, मुझे फकीर समझकर 100 रुपया करके दे जाइए। अल्लाह ताला आपको, आपके खानदान को ज्यादा नौजवान भाई आ रहे हैं। आइए भाई, एक गेम में वो गेम में मोबाइल में पैसा खर्चा हो जाता है, एक बैंक बैलेंस है, दे जाइए 100
প্রকারকে আল্লাহ তাআলা কবুল ফরমায়, আমিন সুম্মা আমিন। মা বোনেদের কাছে ছেলেরা চলে যাও, তাদের রুমাল নিয়ে ভিতরে ভাইদের কাছে চলে যাও, সকলে 100 টাকা, যার পকেটে পয়সা নেই তার কাছে তাকে দিতে 10 পয়সা নিয়ে শরীক হয়ে যাও, 10 পয়সা 50 পয়সা 1 টাকা, কেউ খালি হাতে যাবে না। আমি শেষ দোয়া করব, তারপর মানুষের পায়া হবে। আসুন আসুন ভাই, 100 টাকা করে কেউ ছেড়ে যাবেন নি। এই টাকা জান্নাতে পাঠাবে, এই টাকা কবরে পৌঁছাবে, এই টাকা জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাবে, জান্নাত বাসী করাবে। আর কোরআন হাদিস, আসুন ভাই 100 টাকা করে, 100 টাকা। আমাকে গালি দেন, আমাকে খারাপ করেন, কিন্তু কোরআন হাদিসকে আপনি খারাপ করলে জাহান্নামে যাবেন। এই মাদ্রাসাকে যদি খারাপ করলেন জাহান্নামে যাবেন, খোদার গজবে আপনি লিপ্ত হয়ে যাবেন। তাই আমার ভাইরা 100 টাকা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন, 100 টাকা করে সব ভাইরা পৌঁছে দিন, 100 টাকা করে। रियात अली भाई 1000 টাকা, 1000 টাকা अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह आपके प्यार बनना, मेहनत से, बहुत मेहनत से सर का पैसा नहीं, पैर में टपका कर पैसा कमाया, उसको भी तेरी मोहब्बत में जन्नत को उम्मीदवार होकर जहन्नम की खौफ से दे रहा है। अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। आइए भाई 100 रुपया करके जो जाए, ये नौजवान भाई आ रहा है, সেই সাইলের মতো, ও ইয়াসিরের মতো, খালেদ বিন ওয়ালিদের মতো বদরের যুদ্ধে, খন্দকের যুদ্ধে, ওহুদের যুদ্ধে রক্তকে টকটক করে ফেলেছিল, আল্লাহর কাছে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। সেই ইতিহাস আমাদের জানা আছে, আমাদের কিছু জানতে বাকি নেই। শয়তান বলে বিষ্ণা কমে যাবে, আল্লাহ বলতে বেড়ে যাবে। মাসালুল লাযিনা ইউনফিকুনা ফি সাবিলিল্লাহ কামাসালি আম্মাতিন সাবা সানাবিলা ফি কুল্লি সুনরাতিন মিআতু হাব্বা। তাই বলবো, এক দানা দিলে 70 দানা, 70 দানা 700 দানা। আল্লাহ কোরআনের 3য় পারায় বলছেন। তাই আমার ভাইরা কোরআনকে মানি, কোরআনকে বিশ্বাস করি, কোরআনে ঈমান আনি, এনেছি আনবো, আর মৃত্যু পর্যন্ত থাকবো এই পথে। তাই বলবো, 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা 10 টাকা যার গাড়ি যা আছে দিয়ে দেন। ছেলেরা মাল নিয়ে গেছে এই রাত্রে অন্ধকারে, এই গাছপালা, ঘর দেওয়াল, কীট পতঙ্গ সকলেই সাক্ষী দেবে। নামাজ না পড়ো, রোজা না রাখো, কেউ যদি অন্তর থেকে তাওহীদকে ভালোবাসে, ইনশাআল্লাহ সে জান্নাতে যাবে। আমি যদি হাদিসের বিপরীত কথা বলছি, অনেক আলেম ওলামা আছে, আজ 30 বছর হাদিস পড়াচ্ছি, এটা আল্লাহর বড় অবদান। তাই বলছি, একটা তালবেলকে যদি কেউ গালি দেয়, তার জবাব কিয়ামতের দিনে দিতে হবে। মেহমানে রাসূল, ওইটা হলো খোদার ঘর, এটা হলো আল্লাহর নবীর ঘর। এতে দিন বাঁচবে, ওটা আল্লাহকে পাওয়া যাবে। যে দিনের জন্য মোহাম্মদ বিন কাসেম ভারতবর্ষে প্রথম এসেছিলেন, কাফেলা শহীদ হয়ে গেছে। হযরতে গজনবী, হযরতে ঔরঙ্গজেব, হুমায়ুন, আকবর, হযরতে খিলজি, এরা সব কত লক্ষ শহীদ হয়ে গেছেন এই কোরআনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আজকে আমরা কোরআন পেয়েছি, হাদিস পেয়েছি, অনেক রক্তের বদলে এমনি পেয়ে যায়নি, ঘুমিয়ে পায় না। তাই বলুন, কে আছেন আর? আয় ছেলেরা, আমাদের তালবিলরা, এই ভাইদের কাছে যাও, মা বোনেদের কাছে যাও, মাওলানা সেলিম চতুর্বেদী সাহেবকে নিয়ে আসো তাড়াতাড়ি। কে বাকি আসো, তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো। আর কি আছেন? কেউ খালি থাকবে না, যুবক ভাই হোক, বৃদ্ধ চাচা হোক, মা বোনেরা হোক, 50 টাকা 10 টাকা হলো দিয়ে শরীক হয়ে যান, শরীক হয়ে যান। আমি আজকে একটা কথা বলবো, দুজন জানে, যে ছেলেটা জানে আর যে আলেমটা জানে, যে ছেলেটা তারাও কিন্তু কারোর কাছে বলবে না, আমি ঘটনাটা বলছি।